નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello students, this is last part or 10th part of chapter 8, winds, storms and cyclones of standard 7 science. From the last part we are discussing about the tornadoes. In fact, in our country they are not very frequent. The tornadoes are not very frequent in our country. And what is tornadoes? See, a tornado is a dark funnel shaped cloud that reaches from sky to the ground. Is a tornado. Therefore, I am many things something about that tornado we discussed. Now on the same page, that is on the page number 89, in that blue box, let's discuss something about that. See, the diameter of a tornado can be as small as meter. The diameter of a tornado on the earth, on the land, is as small as meter and as large as kilometer. मतलब कि उसका डायमीटर 1 मीटर भी हो सकता है और 1 किलोमीटर भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, और इवन वाइडर मोर देन किलोमीटर also. The funnel of a tornado sucks dust, debris and everything. The funnel of a tornado sucks dust, now debris, scattered piece of rubbish, that is known as debris, scattered piece of rubbish. So it sucks dust, debris and everything near it at the base due to low pressure and throws them out near the top. अब जो बेस के पास जो है डेब्रिज, डस्ट, एवरीथिंग जो भी होता है उसको वो सक कर लेता है और कहां में फेंक देता है? टॉप की ओर, ऊपर की ओर फेंक देता है. दैट इज व्हाई सी डेब्रिज एंड एवरीथिंग नियर इट एट द बेस के पास जो भी होता है एंड थ्रोज देम आउट नियर द टॉप, ऊपर खींच के ले जाता है. नाउ something more is there in this one, so look into your textbook. Here are a few accounts of the survivors of tornadoes. जो टोर्नेडोज में बच गए उनके बारे में कुछ है फ्रॉम डिस्कवरी चैनल. तो वो क्या बोलते हैं, जो टोर्नेडो में बच गए हैं वो क्या बोलते हैं? I saw the cloud coming and tried to take shelter inside. उसने एक क्लाउड है वो आते देखा और वो शेल्टर लेने के लिए आ रहा है अपने अंदर, उसके घर के अंदर, ऐसा कुछ उसको लगा. But as soon as I reached for the doorknob, the house took off into the sky. जैसे ही वो डोर नॉब के पास डोर खोलने के लिए गए, whoever he is, तो क्या हुआ? The house took off into the sky. जो हाउस था वो चला गया कहां पे? Into the sky. यहां पे हमने देखा है at the base and throws them near the top. तो पूरा जो मकान है, पूरा हाउस है वो खींच लेता है. After the storm, we had to clean the debris from the wheat fields. और एक दूसरा है, after the storm, we had to clean the debris from the wheat fields. We picked up splintered boards and 3 benches as well as dead chickens with their feathers blown off, and rabbits looked like they had been skinned. देखो, जब ये जो स्टोर्म है वो चला गया, बाद में जो व्हीट फील्ड था उसके अंदर क्या क्या पड़ा था? तो सी वी पिक्ड अप
स्प्लिंटर्ड बोर्ड्स, फिर ट्री ब्रांचेस, एज वेल एज डेड चिकन्स। अब डेड चिकन्स थे, ओके, वो डेड थे, बट विथ देयर फीदर्स ब्लोन ऑफ, उसके फीदर खींच लिए वो, जैसे ब्लोन ऑफ, वैसे विदाउट फीदर्स थे। एंड रेबिट्स भी थे, मरे हुए। लुक्ड लाइक दे हैड बीन स्किन्ड, उसकी स्किन खींच ली हो, निकाल दी हो, ऐसे लग रहे थे। और एक है टोर्नेडो शेल्टर इज ए रूम सिचुएटेड डीप इनसाइड और अंडरग्राउंड हैविंग नो विंडोज। अब देखो, टोर्नेडो शेल्टर है वो कैसा होना चाहिए? इज अ रूम situated deep inside or underground having no windows। टोर्नेडो से बचने के लिए जो शेल्टर होता है, जो रूम होता है, वो अंडरग्राउंड होना चाहिए एंड विच डू नॉट हैव एनी विंडोज। और अदरवाइज इट इज बेटर टू शट विंडोज एंड टेक शेल्टर अंडर ए टेबल, वर्क बेंच वेयर डेब्रिस कैन नॉट रीच। अगर ऐसा नहीं है तो सभी विंडोज को बंद कर दो एंड शेल्टर बेटर टू शट डाउन विंडो एंड शेल्टर अंडर ए टेबल, वर्क बेंच वेयर डेब्रिस कैन नॉट रीच। वन हैज टू गो डाउन और ऑन नीज प्रोटेक्टिंग हेड एंड neck using arms. You can see that figure 8.15. Okay, so how to protect ourselves? You can see one head has to go down, on knees, protecting head and neck using arms. You can see this figure also over here. Now let's go further. Effective safety measures. Effective safety measures, cyclone forecast and warning service। अब इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स में क्या क्या होना चाहिए? तो एक तो साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस होनी चाहिए, जिससे कि जल्दी से हमें पता चल जाए और उससे हम वार्निंग हम सभी को दे सके। रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग टू द गवर्नमेंट एजेंसीज, the ports, fishermen, ships and to the general public। हमारे पास रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग, वो कम्युनिकेशन भी रैपिडली जब कर सके, कम्युनिकेट किसको बोल सके, किसको वार्न कर सके, टू द गवर्नमेंट एजेंसीज, द पोर्ट्स, फिशरमैन, शिप्स एंड टू द जनरल पब्लिक। उसको रैपिड कम्युनिकेशन होनी चाहिए जिसकी वजह से हम इन लोगों को हम जल्दी से वार्न कर सके। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर्स इन द साइक्लोन प्रोन एरियाज। कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर्स in the cyclone prone areas and administrative arrangements for moving people fast to safer place। एक तो शेल्टर्स होने चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट कुछ ऐसे होने चाहिए, सरकारी अरेंजमेंट, सो दैट के मूविंग पीपल, ये जो साइक्लोन प्रोन एरिया है वहां से पीपल्स जो है लोगों का स्थलांतर कर सके, for moving people fast to safer places। फिर on the next page, on the page number 90, see you can see there is a box. Let's discuss this box. We have learned that all storms are low pressure systems। We have learned that all storms are low pressure systems। low pressure की वजह से ही होता है ना, and all are low pressure systems। wind speed plays an important role in the formation of storms। okay, wind speed plays an important role in the formation of storms। it is therefore important to measure the wind speed। तो उसके लिए विंड स्पीड क्या अगर पता चले, इफ वी कैन मेजर द विंड स्पीड देन इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट।
the instrument that measures the wind speed is called anemometer. The instrument that measures the wind speed is known as anemometer. Then action on the part of the people. Action on the part of the people. अब people को क्या actions लेने चाहिए when there is a situation such like, see, we should not ignore the warning issued by the meteorological department through TV, radio or newspaper. अगर ऐसी वार्निंग्स आ रही है टीवी में, रेडियो में, फ्रॉम मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो हमें उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें उसको सीरियसली लेना चाहिए. फिर वी शुड मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स टू शिफ्ट द एसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड व्हीकल्स एक्सेट्रा टू सेफर प्लेस. अगर ऐसी सिचुएशन है तो हमें कुछ ऐसे नेसेसरी अरेंजमेंट करने चाहिए टू शिफ्ट एसेंशियल हाउस होल्ड्स गुड, एसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड व्हीकल्स एक्सेट्रा टू सेफ प्लेस. अवॉइड ड्राइविंग ऑन रोड्स थ्रू स्टैंडिंग वाटर एज फ्लड में हैव डैमेज्ड द रोड्स. अब जिस रोड पे पानी भर गया है तो वहां पे ड्राइविंग करना खतरा है ना? Why? Because the flood may have damaged the roads. And keep ready the people numbers of all emergency services like police. Keep ready the phone numbers of all emergency services like police, फायर ब्रिगेड एंड मेडिकल सेंटर्स. तो हमारे पास फोन नंबर्स भी होने चाहिए. जितने भी इमरजेंसी सर्विसेज है उसके फोन नंबर्स हमारे पास होने चाहिए. कौन सी? स्पेशली कौन सी? पुलिस, फायर ब्रिगेड एंड मेडिकल सेंटर्स. तो ये सब कुछ हमारे पास होना चाहिए. फिर some other precautions if you are staying in a cyclone prone areas. कुछ और precautions if you are staying in a cyclone prone areas. See into your textbook itself. Do not drink water that could be contaminated. Always store drinking water for emergencies. अगर आपके पास पानी नहीं है तो ये जो रोड पे पानी है, कोई भी पानी नहीं पीना है. Do not drink water that could be contaminated. Always store drinking water for emergencies. तो हमारे पास इमरजेंसी के लिए वाटर स्टोर होना चाहिए. बाहर से सीधा पानी भर के ऐसा नहीं पीना चाहिए from the road. Then do not touch wet switches and fallen power lines. अगर दीवार पूरी वेट है, स्विचेस वेट है, देन वी शुड नॉट टच इट. एंड अगर फॉलन वायर्स है ना, पावर लाइन से नीचे फॉल डाउन है, देन वी शुड नॉट टच इट. डू नॉट टच वेट स्विचेस एंड फॉलन पावर लाइन्स. डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन. फन के लिए बाहर नहीं निकलना चाहिए ऐसी सिचुएशन में. डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग इन अनड्यू डिमांड्स. अगर आपके पास रेस्क्यू टीम आई है वो आपको रेस्क्यू कर रही है, आपको बचा रही है, तो फिर अनड्यू डिमांड नहीं करनी चाहिए कि मेरे घर में से वो छूट गया उसको भी ले लो. सिर्फ अपनी जान बचाओ. देन कोऑपरेट एंड हेल्प योर नेबर्स एंड फ्रेंड्स. अगर आपके पास, अगर आप सेफ है तो आपको अपने नेबर्स को, फ्रेंड्स को भी कोऑपरेट करना चाहिए. देन एडवांस्ड टेक्नोलॉजी हैज हेल्प. आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी बहुत हो गई है एंड वो बहुत हेल्प भी कर रही है. नाउ हाउ इट इज हेल्पिंग टू अस, लेट्स डिस्कस. दिस डेज वी आर बेटर प्रोटेक्टेड. इन द अर्ली पार्ट ऑफ द लास्ट सेंचुरी, अभी तो हम बहुत वेल प्रोटेक्टेड है, बेटर प्रोटेक्टेड है, लेकिन
in the early part of the last century, coastal residents may have had less than a day to prepare or evacuate their home from an incoming cyclone. अभी तो हम बेटर सेफ है, लेकिन पहले के टाइम में क्या था? सी रेसिडेंट्स सॉरी कोस्टलैंड्स पे जो भी रेसिडेंट्स है उनके पास आधा दिन से भी कम टाइम रहता है, सो दे कैन इवैक्यूएट फ्रॉम दैट एरिया. वहां से स्थलांतर करने के लिए, कोस्टलैंड से स्थलांतर करने के लिए आधा दिन से भी कम टाइम रहता था पहले के टाइम में. The world today is very different thanks to satellite and radars. A cyclone alert or cyclone watch is issued 48 hours in advance of any expected storm. अगर स्टॉर्म आ रहा है तो ये जो हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी है, रडार्स है और सैटेलाइट्स है और साइक्लोन अलर्ट सिस्टम्स है ना, जो कि साइक्लोन्स को वॉच करता है, वो 48 आवर्स एडवांस में हमें वो वार्निंग दे देते हैं. ठीक है. इज इश्यूड सी अ साइक्लोन वार्निंग इज इश्यूड 24 आवर्स इन एडवांस. The message is broadcast every hour or half hour when a cyclone is nearer the coast. Several national and international organizations cooperate to monitor the cyclone-related disasters. So इस तरीके से हम आजकल बहुत सेफ है. With this, we are ending this part, and with this we are ending this chapter also. If you could not understand, watch the videos frequently 2 to 3 times, and do not forget to read your textbook. Thank you. Thank you for joining us. Take care of yourselves, and we'll meet you in the next session. Thank you.